کہ ہمارے پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی علاقے میں منورٹیز کو لے کر کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے. کبھی کراچی میں کسی ہندو لڑکی کو قتل کر دیا جاتا ہے, کبھی سیالکوٹ میں اسلام کے نام پر کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور ابھی آج ہی واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں 2 سکھ بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہے. اور یہ سارا جانے نہ انجانے یہ سارا جو ان سے واقعات ہیں یہ پینٹ کیے جاتے ہیں اسلام کے ساتھ. یہ ساری باتیں ہم پوچھتے ہیں پاکستان کے شہریوں سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں. پاکستان منورٹیز کو لے کر اس طریقے سے تحفظ کیوں نہیں فراہم کر پا رہا جو دوسرے ڈیولپڈ کنٹری میں یا بہتر کنٹری میں تحفظ فراہم کیے جاتے ہیں. فرینڈس، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں. ہیں لوگوں کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ عمران صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ آن لائن بزنس. آن لائن بزنس، اچھی بات ہے. میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا پاکستان میں منورٹیز جو ان سے ہیں جو اقلیت ہیں وہ محفوظ ہیں یا نہیں؟ آئی تھنک نو. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آخر پاکستان جب بنا تھا جس شخص نے ہمارے قائد اعظم نے یہ بولا تھا، محمد علی جناح صاحب نے یہ بولا تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی مذہب کے لوگ ہوں گے، چاہے وہ اقلیت ہوں گے یا چاہے وہ منورٹیز ہوں گے یا میجورٹیز ہوں گے، ان سب کو آزادی ہوگی. وہ جہاں جائیں، ہندوؤں کو آزادی ہوگی، وہ مندر میں جائیں، سکھوں کو آزادی ہوگی، وہ جدھر بھی جائیں، اور عیسائیوں کو آزادی ہوگی. تو پھر کیوں نہیں محفوظ؟ کیا وجہ ہے؟ ہم قوم ہے ہی نہیں. ہم قوم ہیں ہی نہیں. سر کیا وجہ ہے؟ زیادہ تر تو ہم ہر چیز میں بٹے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جو یہاں پہ کاسٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسلام کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے، اسلام کے نام سے نیچے ہم کاسٹ سسٹم، آپ گاؤں میں جائیں کاسٹ سسٹم سے لوگ بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے آگے جائیں ذات پات اور پھر وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ اکٹھا ہو جائے مولوی ایک طرف ہو جاتے ہیں، ایک جناب پی ٹی آئی والا، نون لیگ والا. نہیں سوچا اکٹھے نہیں ہوتے ہم کسی نہیں ہوتے. یہی ایک بہت میجر ایشو ہے. تو سر آپ یہ تھوڑا سا ادھر میرے پاس آ جائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ سر 75 سال ہونے والے ہیں یا 75 سال ہو چکے ہیں ہمیں آزاد ہوئے، آخر کیا وجہ ہے آج تک ہم آزادی بھائی کوئی آزادی نہیں ہے یہاں ہم آزاد بھی نہیں، ہم سیپریٹ ہوئے. سوچ ہی آزاد نہیں ہے ہماری آج تک ہوئی. تو پھر ہم کیوں سیپریٹ ہوئے؟ ہم مقصد جو تھا وہ صحیح ہی تھا. 2 قومی نظریہ تھا نا، اس کا مقصد تھا کہ یہ 2 قومیں ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن ان کے جو اقدار اور ان کے جو بیسک پیچھے ہے نا ویلیوز وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور ان کو علیحدہ ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں آج کل انڈیا میں جو ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جو سر پاکستان میں جو پاکستان میں ہو رہا ہے، انڈیا میں تو جو ہو رہا ہے وہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کراچی میں لوگ وہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی بالکل. یہ کوئی مجھے شاید پہلا بندہ ملا جس نے فیکٹ بیس بات کی اور لاجیکل بات کی ہے کہ جا رہے ہیں. ان کے آپ تعلیمی حالات دیکھیں، ان کے جو معاشی حالات دیکھیں، وہ ایوریج نہیں ہے. ایوریج نہیں بلکہ بلو ایوریج ہیں. ان کے عزت محفوظ نہیں ان کی. مطلب آپ آئے دن خبروں میں سنتے ہیں جی کسی کی لڑکی اٹھا لی، کسی غیرت کے ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ایک ہندو لڑکی کو قتل کیا گیا. ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے. تو یہ کوئی محفوظ نہیں ہے یہاں پہ. اب مسلمان خود ہی محفوظ نہیں ہے بھائی. ابھی میں جا رہا ہوں یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر آپ یہاں کے شہری ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، کوئی آپ رائے دیں کیسے میرا پاکستان بہتر ہوگا، کیسے آپ کا پاکستان بہتر ہوگا؟ نیڈ اے لیڈر. لیڈر سے زیادہ ضروری ایجوکیشن نہیں ایجوکیشن تو ہے ہی، تو لائق آئے گی کہاں سے؟ بالکل لیڈرشپ آئے. ایک لیڈر ہی نہیں اچھا ملا، آپ وہی گھٹیا سوچ، وہی پرانے لوگوں کو ٹرائی کر رہے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ جو آپ کی ابھی پارلیمنٹ ہے آلموسٹ سارے ہی کرمنلز ہیں. دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہیں؟ سارے کرمنلز ہیں. آپ ایک سرکاری نوکری حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ کے خلاف پرچہ ہوا ہو، ثابت بھی نہ ہوا ہو، ملزم ایک اپلیکیشن یا ایف آئی آر ہوئی تو وہ آپ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. آپ ملک کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. یار کوئی ہوتا ہے اور ایسا کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ جی وزیر اعظم باپ اور بیٹا وزیر اعلیٰ؟
खैर, ये एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन ये भी एक इशू है। all these things are linked. डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्स। जब तक हमारे लीडरशिप नहीं बेहतर होगी तो लीडरशिप से ही बाकी सारे सिस्टम कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। अटैच हैं, श्योर ऐसा ही है। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हो। शुक्रिया। We need to be secular a little bit. ये जो है ना एक्सट्रीमिस्ट वाली सोच, इससे खत्म होनी निकलना चाहिए। सेकुलर मुल्कों ने ही दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की की है, इट्स अ फैक्ट। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद, क्या करते हैं आप? मैं सीईओ हूँ एमजे कंसल्टिंग का, इस बिज़नेस कॉन्सेप्ट। ज़बरदस्त, सीईओ हैं आप, एक बिज़नेस जो एक प्रोजेक्ट है उसके सीईओ हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ अक़लियत महफूज हैं या नहीं? एक्चुअली जैसा कि मेरा एक एनालिसिस है, या जैसे मैं देखता हूँ सोसाइटी को, उस सोसाइटी के अंदर जहाँ से मैं पैदा हुआ वहाँ से लाहौर तक, मुझे कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि हम में से या हमारे किसी ग्रोह में से या हमारे जानने वाले, चाहे वो मेजॉरिटी में से हैं यानी पाकिस्तानी, या माइनॉरिटी में से हैं जैसे क्रिश्चियन हो गए या सिख बिरादरी हो गई, हिंदू हो गए, जितनी भी यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, कोई भूल भी जाऊँ तो उसको, तो कहीं पर भी ऐसा कोई भी ना वो रेगरेट जो क्या कहते हैं कहीं पर वो तशवीश वगैरह नहीं है। मतलब आप समझते हैं महफूज हैं? हम मेरे मुताबिक महफूज हैं, लेकिन ये है सही कि आया अगर कोई केसेस आ रहे हैं तो उसका एनालिसिस मतलब उसकी वो क्या बेस डेप्थ ये वजह क्या है, डेप्थ में जाना ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक मैं एक आम आदमी हूँ, मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, तो मार्केट के अंदर अगर मैं एनालिसिस दे रहा हूँ तो फेयर, मुझे किसी के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राय थी, आपने जो ऑब्जर्वेशन की वो आप बता रहे हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि शायद आपकी ऑब्जर्वेशन गलत है। वो किस तरीके से गलत है? जब पाकिस्तान बना था तो यहाँ पर मिनॉरिटीज़ की तादाद थी ऑलमोस्ट 27% जो टोटल पॉपुलेशन है। आज मिनॉरिटी की तादाद है ओनली 3%। बाकी ये मिनॉरिटीज़ किधर गई? ये दूसरे नंबर पे कि जो अभी आज वाक़या पेश आया, 2 सिख मार दिए गए हैं पेशावर में। अभी कुछ दिन पहले जो सियालकोट में वाक़या आया था, पेश आया था, मैनेजर को जला दिया गया था। उससे पहले हिंदू लड़की को सिंध में मार दिया गया था, कराची में एक हिंदू को मार दिया गया था। ये अभी मैं रिसेंटली जो मेरी ऑब्जर्वेशन में वाक़यात हैं वो बता रहा हूँ, तो फिर ये सेफ तो ना हुए। एक्चुअली ये जो आप कह रहे हैं कि 27% से 3% जो रिड्यूस हुई है, उसकी एक तो एनालिसिस है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं, इवन के पाकिस्तानी। मैं खुद 10 to 12 ईयर्स जो था बाहर चला गया था, जो क्या था कि हमसे बहुत सारे लोगों ने इमिग्रेशन की है। क्यों किया? आखिर हमारे यहाँ पे जब अगर इन्वायरमेंट नहीं बेहतर मिलेगा तो ही कोई में आप क्यों नहीं, कभी आपका कभी ये दिल क्यों नहीं हुआ कि मैं यार पाकिस्तान को छोड़ दूँ? आप क्यों नहीं गए? एक्चुअली वजह ये थी कि जब माइनॉरिटीज़ ने तालीम हासिल की, जैसे कि हम सब ने की, तो उनमें हम जब प्रोफेशनल्स हो गए, तो आपको पता है फिर प्रोफेशनल जो होते हैं उनके अंदर वो एक जगह पे नहीं रह सकते। तो इमिग्रेशन वैसे पूरी दुनिया के अंदर, कनाडा हो गई, यूएसए हो गया, या सब चीज़ों पर, तो हमारी माइनॉरिटी जैसे ही उन्होंने तालीम हासिल की, मतलब वो हाईली क्वालिफाइड हो गए, तो श्योर उन्होंने इमिग्रेशन की तरफ गए, और इमिग्रेशन में उन्हें बहुत सी चीज़ें मिली। उन्हें प्रोफेशनल लाइफ मिली, उन्हें लाइफस्टाइल चेंज मिला। यही तो बात करने का मकसद है, उन्हें कुछ बेहतर मिला तो वो चले गए, इधर नहीं बेहतर मिल रहा था। जो लाइफस्टाइल की बात है ना, वो लाइफस्टाइल जो है वो अभी उसके ऊपर तो हम पाकिस्तानियों ने भी काम करना है, समझ रहे हैं ना। हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे मेरा लाइफस्टाइल नहीं मिला। बिल्कुल जो आप चाह रहे हैं पाकिस्तान में वो नहीं। मेजॉरिटी खुद कुछ चीज़ें फेस कर रही है, तो माइनॉरिटी को उसके ऊपर रेगरेट नहीं होना चाहिए। सो वेरी क्लियर। बिल्कुल ये बात कहीं ना कहीं अथेंटिक है कि अभी आप अगर मेजॉरिटी की बात करते हैं तो मिनॉरिटीज़, बिल्कुल जो मुसलमान हैं मिनॉरिटीज़ हैं, क्या उन्हें उस तरह से राइट मिल रहे हैं? वाकई नहीं मिल रहे हैं कि उस तरह से उनकी जो है क्या कहते हैं, एजुकेशन ग्रोथ, इकोनॉमी वाइज, जॉब्स वाइज। शुरू से देखते हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है कहाँ से उसे स्कॉलरशिप मिलता है, उसके बाद उसकी एजुकेशन आ जाती है, कहाँ से उसे वो सब चीज़ें मिल रही है। एजुकेशन बहुत महंगी है मेजॉरिटीज़ के लिए भी। इसके अलावा उनकी जो है रोज़गार के मामला, कहाँ पर इतनी जॉब्स, हम हर रोज़ क्या पैदा कर रहे हैं, हम जॉब मतलब कि एम्प्लॉइज़ पैदा कर रहे हैं, नौकर पैदा कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ तो जा ही नहीं रहे हैं। यानी मेजॉरिटी खुद जो है बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही है, पाकिस्तानी मुसलमान जो भी आपका, तो उसके अंदर माइनॉरिटी को खुद एनालिसिस कर लें। 70% से जो 30% है, उनको अपना शेयर जब मिलेगा तो कितना सा मिलेगा, क्लियर। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है मेरे एनालिसिस जो है आपको इस बेस के ऊपर देखेंगे तो कोई ऐसा मामला नहीं, इट्स रूटीन वर्क। अगर हमारे कई मतलब के मुसलमान फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं पाकिस्तान में, वो भी तो रोज़ाना बम धमाके में या किडनैप में या दूसरी जो रैप के केसेस उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम?
हबीबुल्ला। हबीबुल्ला साहब, क्या करते हैं आप? मैं मसाला जात का काम करता हूँ। मसाला जात मतलब मसाले वगैरह जो खाने में डलते हैं वो बनाते हैं। अच्छी बात है, ज़बरदस्त। करता हूँ। सेल करते हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है कि सर, क्या पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ महफूज हैं जो अक़लियत हैं, दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो क्रिश्चन हैं, या और कोई मज़हब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वो पाकिस्तान में महफूज हैं? जी बिल्कुल महफूज है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम मुसलमान हैं, और इस्लाम ने अक़लियतों के मुकम्मल हकूक़ दिए हैं, तो उसके मुताबिक हम अक़लियतों को पूरे उनके हकूक़ देते हैं, और कोई भी बिला वजह उन्हें तंग नहीं करता। तो कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान तो पुरअमन मुल्क है। आपकी ये बात, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान में अक़लियतों को राइट दिए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट अच्छी है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अभी आज ही पेशावर में 2 सिखों को कत्ल किया गया है। इससे पहले कुछ माह, 1-2 माह पहले या कुछ माह पहले, 3-4 माह पहले जो सियालकोट में वाक़या पेश आया था, मैनेजर को, नॉन मुस्लिम था, उसे जैसे बेदर्दी से कत्ल किया गया। उससे पहले कराची में गैर मुस्लिम एक हिंदू कम्युनिटी से लड़की थी, उसे कत्ल किया गया। उससे पहले और भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो इन 3-4 माह में मैं आपको बता सकता हूँ। ये वो वाक़यात हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं, और जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए उनकी तो तादाद कुछ और होगी। तो सर, इनको कैसे देखते हैं आप? मैं इनको इस तरह देखता हूँ कि जिन लोगों को इस्लाम के बारे में इल्म है वो तो ऐसी कोई हरकत नहीं करते, और ज़्यादातर लोग इस तरह की बातें नहीं करते, और ना ही ऐसे लोगों को वो तंग करते हैं। ये कोई उनकी अपनी ज़ाती होंगी या उनको इस चीज़ की समझ नहीं होगी तो उन्होंने किया होगा, लेकिन ना हमारा मुल्क, ना हमारा आइन कहता है, ना हमारा मुल्क कहता है, ना हमारा इस्लाम कहता है कि अक़लियतों को तंग किया जाए या उनको इधर जो है ना उनके हकूक़ ना दिए जाए। और अगर कोई करता है तो उसकी अपनी ज़ाती गलती है, ज़ाती इस्लाम को नहीं पेंट करना। हाँ जी, इस्लाम को नहीं पेंट करना चाहिए। यही तो हमारे इधर हमारे इर्द गिर्द सारे लोग रहते हैं, इधर क्रिश्चियन भी रहते हैं, उनके साथ हमारे कारोबार सारा सिस्टम है, लेकिन हम तो किसी को नहीं तंग करते, बल्कि वो इधर खुश हैं कि हम पाकिस्तान में पुरअमन रहते हैं। जैसे कि आप इंडिया में देखते हो कि मुसलमानों पे कितना जुल्म किया जाता है, इधर तो किसी को कुछ नहीं कहा जाता। मैंने आप अगर कोई कुछ नहीं कहा जाता, अगर कोई ऐसा कोई कभी वाक़या हो जाए तो उसकी हम मज़ामत करते हैं, ये गलत चीज़ है। वो गलत चीज़ है। आप बताएं कि क्या इस्लाम के नाम पर जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है, क्या इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है? इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया में दहशतगर्दी नहीं हो रही, ये एक गलत कंसेप्ट दिया। वही कह रहा हूँ ना, कि मैं ये नहीं कह रहा इस्लाम कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस्लाम के नाम पे। इस्लाम तो मैं भी मुसलमान नहीं, इस्लाम वाले लोग ये नहीं करते, ये हाँ जी, इस्लाम वाले लेकिन इस्लाम के नाम पे हो रही है। ये लोग जो है ना, ये उन्हीं के एजेंट होते हैं जो करवा रहे हैं, अमेरिका या जो भी। बदनाम इस्लाम को किया जाता है। इस्लाम में ऐसा कोई नहीं है। और आप देखो कहाँ कहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म नहीं हुआ, बर्मा में नहीं हुआ, शाम में नहीं हुआ, अफगानिस्तान में नहीं हुआ, कहाँ कहाँ नहीं जुल्म हुआ। तो आप मुसलमानों को ही दहशतगर्द गिनेंगे, जो वो कर रहे हैं उनको नहीं करोगे, है।